silence is a science is also important about the silence. Do you meditate daily? How many of you will meditate daily on a regular basis? At least 1-2 minutes? You don't? Okay. Today we'll slightly learn how we have to meditate early in the morning whenever we get up. Okay? So today we'll come to know what we are, what is our identity, what is there inside a physical body which make a willpower improve, how we can improve our concentration level. So if we know about ourselves, then only we can make and control our vices. Vices in the sense काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो भी है जैसे शैतानियाँ हमारे अंदर, वो सब विनाश हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम कौन है. जैसे कि अभी यहाँ पे we have a very well known speaker, Mr. Amol Kokani sir, all the way from Delhi he has come here, and he has actually by profession he has completed his mechanical engineer, and also he has done so many other streams like LLB and CA, and he is also well versed with the income tax, whatever the laws included in it. So he has come from Delhi and he will explain you everything about the mind. Okay, so it's a very interesting topic, and if you just keep silent and listen to it, you can control your mind. If you control your mind, you can control whole world. Okay, so before that we'll start with the meditation, and also we welcome Amol sir. Okay. The Bhagavad Gita is spiritual book. Even in America, Belgium, Germany, in different countries, they are following the methods of meditation as per mentioned in Bhagavad Gita. So in chapter number 6, shlok number 12 and 13, if you just Google, you will see that, and you can follow it in whole your life. So you have to sit, your back should be straight, your neck should be straight, and you have to concentrate in the middle of the forehead, because the soul is situated here. You have to concentrate here. You have seen the pictures and idols of Lord Shiva. He is always shown in the deep meditation stage. Yes or no? So he is always shown in the deep meditation stage. So there is a third eye shown in the middle of the forehead. That is the eye of the knowledge, wisdom. So here there is a tremendous power. You have to concentrate in the middle of the forehead, just like a star blinking in the sky. You have to imagine like that. Your mind will run here and there. Don't run behind the thoughts and just concentrate here. आपको मन में जो अलग अलग विचार आएंगे उसके पीछे भागना नहीं है आपको. Don't remember your relatives, your parents, your friends. वर्ल्ड से डिटैच होना है completely, और सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट situated in the middle of the forehead. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा,
minutes we concentrated here. If you daily practice this for half an hour early morning before the sunrise, you will feel very much focused mind, concentrated mind, and there will be natural peace and happiness. Now, when we practice to concentrate our mind for 2 minutes, if someone's mind is flickering very much, then he has to consider that he is sick. जिसका मन कम भाग रहा था उसका मन हेल्दी है, और जिसका मन ज्यादा भाग रहा था उसका मन अनहेल्दी है। सेकंड थिंग, किसी को अभी मेडिटेशन करते वक्त बहुत सारे लोग उनके फेसेस याद आ रहे थे ना। जितने ज्यादा याद आ रहे थे समझो माइंड अनहेल्दी है, सिक माइंड। तो रोज इसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा मन कितना बीमार है, कितना स्ट्रांग है, कितना हेल्दी है। बिकॉज इन स्क्रिप्चर्स एंड ऑल रिलीजियस बुक्स दे आर सेइंग दैट मन जीते तो जगत जीत। द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। The one who lost by his mind has lost everything. Is it right or wrong? जैसे एग्जाम होता है, आप बीमार हो गए, है ना, एग्जाम नजदीक आ गया और आप मन से हार गए, तो आप एग्जाम को अपीयर नहीं होते हैं। और अगर आप बीमार हो लेकिन मन से पावरफुल हो तो आप एग्जाम को अपीयर भी होते हो और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो माइंड की जो पावर है, ये पावर ऐसी पावर है जिसको हम बोलते हैं विल पावर, मनोबल, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर सबकी बढ़ रही है या कम हो रही है? हाँ? बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है? हाथ ऊपर करो। किसकी बढ़ी है? बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। अच्छा, सवेरे से लेकर रात तक मन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं। सच्चे बच्चे। तो ये जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे मन और बुद्धि, हमारे ख्यालात, हमारी अक्ल, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये श्रेष्ठ बन रहा है या भ्रष्ट बन रहा है? हाँ? जोर से, मुझे सुनाई कम देता है। श्रेष्ठ बन रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करके इट इज बिकमिंग राइटियस और अनराइटियस? राइटियस, अनराइटियस, राइटियस। अच्छा, कितना परसेंटेज राइटियस होगा और कितना परसेंटेज अनराइटियस होगा? हम अगर आज पूरे इंडिया की बात करते हैं, आज छोटे छोटे बच्चों की 10 साल, 12 साल, 15 साल, उनकी बुद्धि, जो अक्ल है, वो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, श्रेष्ठ नहीं बन रही है। और आज जो क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं सोसाइटी में, वो क्राइम्स क्यों बढ़ते पता है आपको? क्योंकि माइंड एंड इंटेलेक्ट करप्ट हो चुका है। और माइंड एंड इंटेलेक्ट को करप्ट करने वाला ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारी चीजें। हाँ या ना? पहले ये टेक्नोलॉजी कम थी, फिर भी थोड़ी माइंड एंड इंटेलेक्ट स्टेबल थी।
अभी जो फीड किया जा रहा है, जैसे घर में माँ फूड को कुक करती है, भोजन तैयार करती है और वो हम खाते हैं, तो जैसा हमारी थाली में परोसा जाता है वैसा हम खाते हैं। आज ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इसमें क्या परोसा जा रहा है? अभी वो कंट्रोवर्सी चल रही है, रणवीर अलाहाबादिया, क्या परोसा जा रहा है? अच्छा परोसा जा रहा है या बुरा परोसा जा रहा है? तो ऐसी ऐसी चीजें जो है, राम ने जाते वक्त कुटिया से लक्ष्मण को बोल दिया और लक्ष्मण ने सीता के प्रोटेक्शन के लक्ष्मण रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा मतलब मर्यादा की रेखा। हर एक व्यक्ति को मर्यादा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज डिग्रेड हो रहे हैं या अपग्रेड हो रहे हैं दुनिया में? और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, ये अपग्रेड हो रही है, डिग्रेड हो रही है? अपग्रेड हो रही है। तो साइंस अपग्रेड हो रहा है और साइलेंस की पावर डिग्रेड होती जा रही है, और साइलेंस की पावर कनेक्टेड है माइंड एंड इंटेलेक्ट से। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट को डिसाइड करना है कि हमारा भोजन क्या है। There is a food of the body, in the similar manner there is a food of the soul. पता है आपको सोल का भोजन क्या है? रूह का खाना क्या है? क्या चाहिए? पीस। पीस चाहिए, पीस चाहिए, ताकत चाहिए, तो हम खाना खाते हैं। तो ताकत नहीं खाते हम खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल ड्राई फ्रूट्स। तो पीस चाहिए, तो खाते क्या है? आत्मा को क्या भोजन देना है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? मेडिटेशन। इधर क्या जवाब दिया? वर्शिप। और मेडिटेशन दो फूड से। द फर्स्ट वन इज द मेडिटेशन, उसको बोलते हैं ध्यान, एंड द सेकंड वन इज द स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान और ध्यान, दिस इज द फूड ऑफ द सोल। आप में से कितने लोग ये भोजन रोज लेते हैं? 24 आवर्स रोज के दिन में हम ये भोजन देते हैं क्या? आधा घंटा, 15 मिनट। एक है आत्मा का भोजन, एक है शरीर का भोजन। शरीर का भोजन तो हम रोज देते हैं, 3 टाइम। किसी ने बोलने की जरूरत नहीं, माँ नहीं बोलेगी तो भी बराबर, जहां रोटी सब्जी सब कुछ रखा है, लड्डू रखे हैं, बराबर जाके खाते हैं हम। लेकिन आत्मा का भोजन का क्या? आत्मा का भोजन लेते हैं हम रोज। स्पिरिचुअल नॉलेज, किसी की भी धर्म का ज्ञान हो जिसमें पॉजिटिव थॉट्स अंदर आए और निगेटिव थॉट्स भाग जाए। रोज आप 1 आवर डेली अगर कोई अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज कानों से सुनोगे तो आपके माइंड एंड इंटेलेक्ट में जो फीडिंग होगी वो पॉजिटिव थॉट्स की फीडिंग होगी। आज लोग टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आज ये हम फूड लेते नहीं है और फिर क्या होता है? टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ओवर थिंकिंग होता है ना। कंटिन्यूस थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे हम इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्मॉल इश्यूज। उसका कारण ये है हम बाकी सारी चीजों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए टाइम दे रहे हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, फेशियल करते हैं, बॉयज रहेंगे तो जिम में जाएंगे बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल ब्यूटी के पीछे भागते हैं और इंटरनल ब्यूटी को भूल जाते हैं। इंटरनल ब्यूटी
is connected to mind and intellect, and it is connected to soul. It is regarding the divine qualities inside you. बाहर से कोई बहुत सुंदर चेहरा है, जरूरी है क्या अंदर उसके विष नहीं होगा? बताइए। हिस्ट्री में आप कितने अच्छे अच्छे चेहरे जिनकी एक्सटर्नल ब्यूटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन इंटरनली उनके जैसा पॉइजन विष मन के अंदर किसी के पास नहीं है। यस, तो एक्सटर्नल ब्यूटी के तरफ ध्यान देते हैं लेकिन इंटरनल ब्यूटी भूल जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन ये जो फूड ऑफ द सोल है इसको हम लेते नहीं। और दूसरी चीज, अभी आप ये क्या कर रहे हो कोर्स, क्या नाम? बीएससी। बीएससी करने के बाद आपको क्या डिग्री मिलेगा? डिग्री मिलने के बाद क्या? मास्टर डिग्री करोगे, फिर क्या करोगे? शादी? जल्दी? किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो? नौकरी, जॉब, पैसा। तो एक्सटर्नल वेल्थ के लिए आप भागोगे और एक्सटर्नल वेल्थ बहुत कमा सकते हैं, लेकिन फिर एक्सटर्नल वेल्थ कमाने के चक्कर में इंटरनल वेल्थ गायब हो जाता है। और फिर जब इंटरनल वेल्थ गायब हो जाता है, एक्सटर्नल वेल्थ लाखों करोड़ों, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, सारा पैसा आ गया और आंतरिक सुख एंड शांति, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस गायब हो जाता है। इंटरनल वेल्थ गायब, एक्सटर्नल वेल्थ बहुत सारी। ऐसे घर में शांति होती है, लड़ाई झगड़ा। तो फिर क्या करते हैं? एक्सटर्नल वेल्थ बहुत सारी और इंटरनल वेल्थ गायब। फिर जाते हैं बाबाओं के पास कि बाबा जी अभी मेरे पास इंटरनल वेल्थ कुछ नहीं है, मुझे दे दीजिए, अभी आप जैसे बोलेंगे वैसे करूंगा मैं। फिर बाबा जी को अपनी सारी एक्सटर्नल वेल्थ दे देते हैं, अभी मुझे आप इंटरनल वेल्थ दे दो, है ना? सारा पैसा लगा देते हैं। सही बात है ना? समझ में आ रहा है? तो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आज जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फियर है कॉलेजेस में, एजुकेशनल सिस्टम में, आपने राजस्थान में कोटा नाम सुना है? कोटा में कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं। एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंजीनियरिंग, एंट्रेंस एग्जाम फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। और एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स, लास्ट 4 इयर्स में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। कारण स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। सिर्फ आज जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई को बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या सेक्युलर एजुकेशन, भौतिक पढ़ाई। ये आपको मटेरियलिस्टिक बना देती है। आप जब खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पैसे कमाने लगोगे, अपनी गृहस्थी संभालोगे, तो आपको क्या टेंशन रहेगा? अरे मुझे मोबाइल का बिल पे करना है, रिचार्ज करना है। आपको टेंशन रहेगा कि वॉशिंग मशीन का मेंटेनेंस करना है, सोसाइटी में जो फ्लैट लिया हुआ है उसके मेंटेनेंस का पैसा देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, पानी का बिल देना है। तो आज से 500 साल पहले ये सारी चीजों की जरूरत थी। फ्रिज को मेंटेनेंस करना है, एयर कंडीशनर प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसको ये करना है। अभी हमारा लाइफ, हम इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हैं लेकिन हम मटेरियलिस्टिक के तरफ जा रहे हैं। पहले गांव में इतनी सारी सुविधा होती थी क्या? तो इतने सारे टेंशन्स भी नहीं थे। आज आप पढ़ लिख के आपने बहुत सारी चीजें ले ली लेकिन टेंशन्स भी बढ़ा लिए। और इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमको स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में जब तक हम लाएंगे नहीं, आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आदि मीन्स इनसाइड एंड आत्मा मीन्स सोल। इट इज द नॉलेज ऑफ द सोल, नॉलेज इनसाइड द सोल, आत्मा की नॉलेज, इंटरनल नॉलेज। एक है एक्सटर्नल इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज द इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग जो है उसकी नॉलेज हमें नहीं है। बड़े बड़े हम
5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, 70 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स। बॉम्बे में जाइए, हैदराबाद में भी हो सकती है, बाहर की कंट्रीज में जाइए। अर्थक्वेक आ जाएगा। अर्थक्वेक कल दिल्ली में हुआ था। अगर अर्थक्वेक आ जाएगा, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में 70 मंजिल की बिल्डिंग ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी। तो आपका साइंस कुछ कर पाएगा? कितने भी आप नए नए टेक्निक्स ये करो, जो नेचर है, अगर नेचर ने रुद्र रूप, रौद्र रूप धारण कर लिया, अगर नेचर आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो आपने जितना भी साइंस के आधार से डेवलपमेंट किए सारे फेल हो जाएंगे। और नेचर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने चाहिए। जो एनिमल्स है, ये नेचर है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, माउंटेन से, रिवर से, हवा है, पानी है। अभी हवा जो है, ये पोल्यूशन, ज्यादा पोल्यूटेड हवा है या बहुत प्योर हवा है, क्लीनलीनेस है? पोल्यूटेड है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन हो रहा है। ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ सारी दुनिया जा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज सूरज के डायरेक्टली धरती पे आ रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और उसकी वजह से ओशंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। यस और नो? ये नासा की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो नेचर जो है हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, उसका कारण ये है, द ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट एक्टर, नंबर 1 एक्टर ऑफ दिस रंगमंच। ये जो रंगमंच है, ये जो ड्रामा है, इसका जो स्टेज है, इसका सबसे मुख्य एक्टर ह्यूमन बीइंग है। आपके घर में जो कुत्ता पाला हुआ है, पेट डॉग, और जो जंगल में जो कुत्ता है, जंगली डॉग, इन दोनों में कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? पेट डॉग। रीजन क्या है पता है आपको? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, उसके वाइब्रेशंस में वो रहता है, पेट डॉग। क्यों? उसका मालिक और उसके घर के मेंबर्स बीमार पड़ते तो वो भी बीमार पड़ता है। तो हमारे वाइब्रेशंस का असर आजू बाजू में, एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, सबके ऊपर होता है। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी दुनिया में। अगर हम रात को 12-12, 1-1 बजे जगकर वेब सीरीज में वायलेंस वाली मूवीज देखेंगे, सेक्सुअलिटी वाली मूवीज देखेंगे, गंदी गंदी चीजें देखेंगे और इस दिमाग में डालेंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होंगे एटमॉस्फेयर में या निगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होंगे? और निगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होंगे तो क्राइम होंगे। क्राइम होंगे तो फिर दुनिया सारी चिल्लाएगी कि कलकत्ता के डॉक्टर के साथ ऐसा ऐसा हो गया करके, इसका सर कलम कर दो, इसको कैपिटल पनिशमेंट दे दो। तो गवर्नमेंट जो है वो कितने भी कड़े कानून लाएगी, कैपिटल पनिशमेंट दे देगी, तो भी क्या उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर वो राक्षसी वृत्ति आ गई, वो शैतान उसके अंदर जो आ गया, उसने जो गलत कर्म किया, पाप कर्म किया, उस कानून लाने से उसकी मेंटेलिटी, मानसिकता बदल जाएगी क्या? नहीं जाएगी, क्योंकि रूह जो है वो कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। द सोल इज इमॉर्टल, द बॉडी इज मॉर्टल। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट जो है उसमें पॉजिटिव फीडिंग होनी बहुत जरूरी है। भारत की जो संस्कृति है और परंपराएं, जो ट्रेडिशंस है और जो हमारे अच्छे संस्कार है, इसको आज सब लोग भूलते चले जा रहे हैं और शैतानी दिमाग ऐसा बनता चला जा रहा है जिसकी वजह से दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, वायलेंस, आतंकवाद सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। चाइना became the first country who recognized addiction of the internet as a disease.
एक रिसर्च ने ये बताया देयर इज अ मेजर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन स्टडीज and there is a strong link between heavy social media use and increased risk for depression, anxiety, loneliness, overthinking, suicidal thoughts. तो मन के विचारों की, माइंड के जो थॉट्स है उसमें वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। आज आपके फ्रेंड के घर में किसी का इंतकाल हो गया, फैमिली मेंबर, वो दुखी है, सैड मूड है, और वो जो सैडनेस के वाइब्रेशंस है वो क्लासरूम में आके बैठ गई, तो उस वाइब्रेशंस का असर आजू बाजू में, सराउंडिंग में होगा या नहीं होगा? तो वाइब्रेशन जो है, जैसे वाइब्रेशन से वैसी दुनिया बनती है। अगर हम खुद पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करेंगे तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर भी आएगी, दूसरों के पास भी जाएगी। So the thoughts of the mind are creating your world. The soul is friend of yourself and enemy of yourself. हमारा शत्रु और हमारा मित्र हमारी खुद की आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है। हम दूसरों को दोष देते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन आपकी अगर एनर्जीज, आपके वाइब्रेशन, आपके सोल की फ्रीक्वेंसी, आपके माइंड की प्यूरिटी अगर हाई लेवल पे है, तो दूसरा लो लेवल का व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आएगा तो इतना इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। लेकिन आपके वाइब्रेशंस लो लेवल पे है, लो फ्रीक्वेंसी है, और सामने वाला भी आपसे भी लो वाला है, तो आप और लो में चले जाओगे और लड़ाई झगड़ा मारा मारी होगी या नहीं होगी? तो अपने वाइब्रेशंस हाई लेवल पे रखो। सामने वाला अगर कितना भी लोअर वाइब्रेशन से, तो आप हाई लेवल से थोड़ा सा इतना नीचे आ जाओगे, है ना? वो तो इधर बैठा हुआ है, ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आप काम एंड स्टेबल, आपका माइंड कैसे रहेगा? कठिन परिस्थितियों में, क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में लाइफ के, आपका माइंड काम एंड स्टेबल होगा। उसके लिए आपको आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए दो भोजन, there are two foods of the soul. First one is meditation. रोज हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, 4 बजे उठ जाइए और कॉन्सेंट्रेट इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट सोल, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, डोंट रिमेंबर एनीबडी। कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार, कोई आपका टीचर, प्रोफेसर, कोई याद नहीं आना चाहिए। कल किसके साथ झगड़ा हुआ, कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, और अपने लिए समय दे दीजिए। अपने सारे मल्टीपल थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रोज हाफ एन आवर। ये फूड ऑफ द सोल है। और 1 घंटा रोज पॉजिटिव थॉट्स। रात को जल्दी सो जाइए। रात को कितने बजे सोते? 10, 9, गुड। हाँ, 12, 10। 2 बजे कौन सोता है? 2 बजे, 3 बजे है, ऐसे बहुत सारे। अभी ऐसा समय चल रहा है कि हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए, और आज की जो जनरेशन है वो अर्ली मॉर्निंग में सोती है, फिर उनका नाइट चालू होता है। तो मेडिटेशन यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं और बाकी के जो कर्मेंद्रिय है आपके इसके नीचे है, इसको बोलते हैं उत्तमांग। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। यहां पे आत्मा रहती है, रूह रहती है, जिसके लिए बोला है, स्क्रिप्चर्स में बोला है कि आत्मा यहां रहती है, भ्रुकुटी के बीच में। और जो बहुत सारी जो भारत की कन्या माता है, यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। उसका कारण है
जो आत्मा है भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए, आपको ट्रिमेंडस पावर महसूस होगी। तो आज जो स्ट्रेस है माइंड के अंदर, उसकी वजह से जो इलनेस, जो बीमारी है वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ज्यादातर जितनी भी बीमारी है वो मन से कनेक्टेड है। होम्योपैथी जो एक मेडिसिन होता है, उसमें आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको काउंसलिंग करेंगे 2 घंटा 3 घंटा, सारा हिस्ट्री पूछेंगे। वो देखेंगे कि आपको इस लाइफ में कुछ क्या क्या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम से, क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ आपके ऊपर। तो आजकल जितने भी डिसीजेस है और बीमारियां है, उसका कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्ट्रेस से कनेक्शन है। आपको पता है, इसको देखा है आपने, सोनाली बेंद्रे एक्ट्रेस, तो इसको कैंसर हो गया था। She says that positive thoughts not only just cure illnesses but can even increase the lifespan of the person. तो पॉजिटिव थॉट्स सिर्फ आपके इलनेसेस क्योर नहीं करता है, आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकता है। और आज जितनी भी बीमारियां है आपके माइंड से कनेक्टेड है, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन जो आपकी बीमारी जड़ से निकालेगा। बीमारी अगर जड़ से निकालनी है तो स्पिरिचुअल एजुकेशन। जैसे कोई झाड़ है, तो झाड़ को अगर पानी देना है तो पानी कहां डालते हैं आप? रूट्स को। यू आर नॉट वाटरिंग द ट्री ऑन इट्स लीव्स, ऑन इट्स ब्रांचेस, स्टेम। आप रूट्स में पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे शरीर ये वृक्ष है, शरीर ये झाड़ है, और आत्मा क्या है? आत्मा या माइंड या इंटेलेक्ट इसका सीड है, बीज या वृक्ष, रूट है। तो आप इसको भूल चुके हो। We forgot our real identity. Who am I? मैं कौन हूं? अभी हमारी जो रियल आइडेंटिटी है हम भूल चुके हैं। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अभी हम अपने आप को समझ रहे हैं आई एम अ फिजिकल बॉडी। अगर मैंने पूछा हु आर यू, तो आंसर क्या आ जाता है? आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू, आई एम बंगाली, आई एम बिहारी, आई एम तेलुगु, आई एम कन्नड़, आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर। ये आंसर्स आते हैं। मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं चीनी हूं, ये आंसर्स आते हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलीजन, कास्ट और हमारा जहां हम रहते हैं, नेशनैलिटी, इसके आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। लेकिन हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। हमारी असली आइडेंटिटी है आई एम अ पीसफुल सोल। जब आपने ह्यूमन बीइंग, ये जो वर्ड है ना ह्यूमन बीइंग, ये वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ है। वन इज द ह्यूमन एंड अनदर वन इज द बीइंग। हाँ जी, तो ह्यूमन मीन्स व्हाट एंड बीइंग मीन्स व्हाट? एनीबॉडी नोस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग? ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। ये जो दिख रहा है आपको, आप साइंस के स्टूडेंट्स हो ना, तो मेडिकल साइंस ने आज आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, सबका पूरा का पूरा, हर एक शरीर के अंग का पूरा नॉलेज मेडिकल साइंस के पास है। तो दिस इज ह्यूमन स्केलेटन। नर्स किसी पेशेंट को पूरा उसका केयर ले रही है हॉस्पिटल में, पेशेंट एडमिट है, ठीक है, तो उसका नाम XYZ कुछ भी समझो, रवि जी एडमिट है। तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद जब पेशेंट डेड हो जाता है तो नर्स बोलती है डेड बॉडी को लेके जाओ। ऐसा नहीं बोलती रवि जी को लेके जाओ, डेड बॉडी को लेके जाइए। पहले तो बोलती है रवि जी अभी ठीक है, उनके रिलेटिव्स को बताती है अभी घबराने की कोई चिंता नहीं है, हम पूरा वॉच कर रहे हैं, ठीक है। बोलती है डेड बॉडी, तो क्या क्या चला गया जिसकी वजह से डेड बॉडी हो गई? सोल। वेरी गुड आंसर।
सो दैट इज रियल आइडेंटिटी। जो जाने के बाद डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी जो है, ये फिजिकल बॉडी इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, एथर। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, इससे ये बॉडी बनी हुई है। एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। तो इसमें बॉडी है नॉन लिविंग जिसको बोलते हैं डेड, और आत्मा है, सोल है, चैतन्य, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आती तब है जब रूह एंटर करती है। रूह एंटर नहीं करेगी तो कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। और जो रूह है उसके 3 इंग्रेडिएंट्स है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन मीन्स ख्यालात, बुद्धि मीन्स अकल, और मन, बुद्धि, संस्कार माना आदतें, हमारे जो हैबिट्स है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार आएंगे। अगर जिसके काम ही सारे बुरे हैं, उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छे से बात करे, दूसरों से अच्छे से बिहेवियर करे? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि उसके काम ही राक्षसी वृत्ति के है, तो राक्षस जैसा ही काम करेगा, बिहेवियर करेगा, उसकी आदतें भी वैसे ही होगी। तो ये जो मोटर व्हीकल दिखाया नीचे, इसका ड्राइवर, उसका भोजन अलग और गाड़ी का भोजन अलग। वैसे ही आत्मा का भोजन अलग और शरीर का भोजन अलग। ह्यूमन बीइंग मींस एनर्जी, दैट इज सोल, एंड ह्यूमन इज ह्यूमन स्केलेटन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बीइंग। सो आई टोल्ड यू फूड ऑफ द सोल। नाउ we are coming to the point, what are the 3 enemies of the soul? आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, जिसकी वजह से हमारी विल पावर कमजोर बन जाती है, माइंड की जो पावर है वो कमजोर बन जाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तो there are 3 enemies of the soul which are opening the gates of the hell, जहन्नुम के दरवाजे खोलते हैं। ऐसे 3 नरक के द्वार खोलने वाले, there are 3 enemies of the soul। किसी को पता है? Yes, बताइए। हाँ? क्या बोली? Negative people, they are opening the gates of the hell। आपके अंदर है वो। There are 3 enemies of the soul। The first one is the काम। काम means lust, havas। Second one is the क्रोध, anger, and third one is the greed, लोभ, जिसको बोलते हैं लालच। तो काम, क्रोध और लोभ, these are the 3 enemies of the soul। और ये जो आत्मा के 3 शत्रु है, ये सबके अंदर, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, परसेंटेज अलग अलग रहेगा, और जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है रोज के रोज। और उस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन, एंड द सेकंड थिंग इज द मेडिटेशन। और मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन करते वक्त आपको आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। आपको आंखें, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र है, मूर्तियां है, उसमें वो डीप मेडिटेशन स्टेज में उनकी आंखें पूरी बंद नहीं है, आंखें आधी खुली आधी बंद है। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे चित्र को, तो जो डीप मेडिटेशन स्टेज है उसमें आंखें कंप्लीटली बंद करके मेडिटेशन नहीं करना है, आर्टिफिशियल मेडिटेशन नहीं करना है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हाँ? रुकैया। तो रुकैया का बीएससी कंप्लीट हो गया, फिर एमएससी कर लिया उसने, फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई, जॉब मिल गया उसको। जॉब मिल गया तो रुकैया की माँ यहाँ रहती है हैदराबाद में, और रुकैया की माँ ने वीडियो कॉलिंग ट्राई किया। रुकैया की याद आ रही है, चलो वीडियो कॉलिंग से बात करते देखते हैं जरा। नेटवर्क फेल है। वो क्या नाम उसका,
जो नया है स्टारलिंक, स्टारलिंक का नेटवर्क आया है ना अभी, नेट क्या नाम है उसका जिसने टेस्ला कार लाया? एलोन मस्क। ठीक है, तो इंटरनेट का नेटवर्क जो है फेल हो गया और शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद हर डॉटर हु इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रुकैया की माँ यहाँ बैठ के, हैदराबाद में बैठ के, कौन सा नगर? संतोष नगर, संतोष नगर में बैठ के, यही रहते हो ना नजदीक? हाँ, पूरा एड्रेस मत बताओ, घर पे नहीं आएंगे। संतोष नगर में बैठ के रुकैया की माँ रुकैया को सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करती है और रुकैया को हिचकी आ जाती है वाह। और वो अपने फ्रेंड को, आपका नाम क्या है? अदीमा, अदीमा को बोलती है, क्योंकि अदीमा भी अमेरिका में ही है उस समय, अदीमा को बोलती है कि जरूर मेरी अम्मी ने याद किया है मुझे, है ना? हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि ये वाइब्रेशन की पावर है। साइंस फेल हो गया, वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल हो गया, लेकिन सच्चे दिल से, जहां सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वहां अगर सच्चे दिल से कोई किसी को याद करता है तो उस वाइब्रेशन की पावर 7 समुंदर पार, वहां भी जाके वो वाइब्रेशंस, वो फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट होके वो मैसेज पहुंच सकता है ना? क्या हो गया फिर? आपकी मां भी करेगी यार। तो ये जो मन के संकल्पों की पावर है, थॉट्स की पावर है, विल पावर है, वाइब्रेशन की पावर है, आज हम इसको भूल गए। आज जो मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं, आप अगर ऑनलाइन मेडिटेशन के कोर्सेज ज्वाइन करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी, these are all artificial techniques, these are all artificial techniques। माँ ने याद किया बच्ची को अपने, तो माँ पालथी मार के बैठ के, आंखें बंद करके बैठ गई क्या बच्ची को याद करने के लिए? There is no necessity। माँ बच्ची को याद करने के लिए रुकैया रुकैया जाप करने लगी क्या? माला लेके, रुकैया 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 याद आ जाए जल्दी। या कोई रुकैया का फोटोग्राफ निकाला, एल्बम निकालो जल्दी जल्दी, कहाँ है फोटोग्राफ्स उसके? फोटोग्राफ, हाँ मेरी रुकैया। तब जाके रुकैया याद आई क्या? नहीं ना। अच्छा, माँ ने कोई मेडिटेशन सॉन्ग प्ले किया क्या रुकैया को याद करने के लिए? कोई नहीं। और माँ ने कोई डांस भी नहीं किया। आज क्या होता है, गणेश उत्सव होता है आपके हैदराबाद में, गणपति जैसे बॉम्बे में होता है, तो वहां पे डीजे सॉन्ग बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं। वो बोलते हैं गणेश भगवान, गणेश हमारे देवता है, तो उसके लिए डांस भी करना पड़ता है, शराब भी पीनी पड़ती है, सारे गलत काम करने पड़ते हैं। तो आज हमारा ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन टूट चुका है। वो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। हम आर्टिफिशियल टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव द स्पिरिचुअल नॉलेज। रुकैया की माँ को रुकैया के बारे में नॉलेज है और दोनों का आपस में सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्रीत है, उसकी वजह से नेचुरल याद आ रही है। तो परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, गॉड के प्रति नेचुरल कनेक्शन होने के लिए हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज मिलेगी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। जितना हम उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भौतिक पढ़ाई है, समझ में आ रहा है? तो वो जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके पास 100% पीस, हैप्पीनेस, वो आनंद का सागर है, दरियाए इल्म, दरियाए अमन, शांति का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। उसके पास सारी पावर्स है और हमारे पास पीस, हैप्पीनेस, प्यूरिटी सब कुछ नहीं है। तो हमें अगर उससे कनेक्शन जोड़ेंगे, अगर हमारा कनेक्शन उससे जुड़ेगा, तो हमारे सोल के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर वो विल पावर,
वो पीस, हैप्पीनेस वो इंक्रीज हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो देयर इज वन स्पिरिचुअल एजुकेशन, इट इज कॉल्ड एज राजयोग। व्हाट इज राजयोग? दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन वन चेयर having 4 pillars, 4 legs, and he is concentrating in the middle of the forehead, point of light, and remembering God. And when he is remembering God, ये जो enemies of the soul है, these are the, इसको बोलते हैं शैतान। मुस्लिम माइथोलॉजीज में, ग्रंथों में इसको बोलते हैं शैतान। शैतान क्या है? यही लस्ट, एंगर एंड ग्रेड। सही है। ईगो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह मीन्स अटैचमेंट, लगाव, एंड ईगो मीन्स गुरूर, अहंकार। तो ये जितने भी एनिमीज है ये भाग जाएंगे अगर आप इस राजयोग की प्रैक्टिस को करेंगे। देयर आर 4 पिलर्स। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। सेलिबसी मीन्स सेल्फ कंट्रोल। आज हमारे जो ऑर्गन्स है बॉडी के, इसके ऊपर हमारा सेल्फ कंट्रोल है क्या? हाँ जी मैडम, सेल्फ कंट्रोल है हमारा। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर हमारा सेल्फ कंट्रोल है। आपको बोला अरे वो गलत चीज है, उधर मत देख, गंदी चीज है, लेकिन आंख उधर ही देखती है। कान को बोला बुरी बातें मत सुन, लेकिन कान और ही उधर जाके सुनता है। तो हमारे आंख, कान, नाक, हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य जो सेलिबेसी है, इट मींस सेल्फ कंट्रोल। इन स्क्रिप्चर्स इट इज सेड दैट इंद्रिया जीते सो जगत जीत। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है इनको कंट्रोल करने के लिए बॉडी से पावरफुल क्या है? मन है, माइंड। माइंड इज पावरफुल देन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। और माइंड से भी पावरफुल क्या है? हाँ जी, चश्मा यहां पे देखो ना। माइंड से भी पावरफुल क्या है? माइंड से भी पावरफुल है इंटेलेक्ट, बुद्धि। और बुद्धि से भी पावरफुल है परमात्मा या ईश्वर या अल्लाह। तो आज हमें पावरफुल इंटेलेक्ट अगर हमने बनाया, उसमें पॉजिटिव फीडिंग किया, तो हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा इंटेलेक्ट मन को कंट्रोल कर सकता है, मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो राजयोग का फर्स्ट पिलर है सेलिबसी। सेकंड वन इज द प्योर फूड, शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। एज अ फूड सो द माइंड। तो सात्विक फूड, राजसी फूड एंड तामसी फूड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड्स। तो आप जितना ईश्वर की याद में, भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन अगर ग्रहण करेंगे, कंज्यूम करेंगे ऐसा फूड, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार आएंगे, आपके माइंड की क्लींसिंग होगी। द थर्ड वन इज द डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन वर्च्यूज। डिवाइन क्वालिटीज कौन से हैं और डेमोनिक ट्रेट्स कौन से हैं, आपको पता है? कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, समझो आपका भाई गाड़ी चला रहा है, और सामने एक छोटा कुत्ते का पिल्ला आया, छोटा सा, और उसने, उसके अंदर अगर राक्षसी संस्कार है, वो केयर नहीं करेगा, उड़ा देगा, उसको उड़ाते हुए जाएगा। वो लेटा हुआ है कुत्ते का छोटा सा बच्चा। अगर डेमोनिक ट्रेट से है तो उसको कुचल के टायर से उसको मार देगा। और अगर उसके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है तो डिवाइन क्वालिटीज क्या सिखाती है? कंपैशन, प्राणी के ऊपर दया। सिर्फ एनिमल्स के ऊपर नहीं, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो एनिमल, मनुष्य के ऊपर भी दया। तो जो डिवाइन क्वालिटीज है, नॉन वायलेंस, दया, क्षमा, शांति, कंपैशन, ये सारी क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर है क्या नहीं चेक करने हैं। एंड द फोर्थ वन इज सत्संग या स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये राजयोग के 4 पिलर्स है। अगर ये चीजों को हम रेगुलर लाइफ में फॉलो करते हैं
तो हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट की क्लींसिंग होती जाएगी, विल पावर बढ़ती जाएगी। जैसे अभी लोग, करोड़ों लोग, हेलो, करोड़ों लोग जाके महाकुंभ में जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो क्या सबके पाप धुल जाएंगे? दुनिया और ही पापी बनती जा रही है। जैसे शरीर को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? रोज स्नान करते हैं। वैसे आत्मा को क्लींसिंग करने के लिए या मन और बुद्धि की क्लींसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा स्नान करना पड़ेगा? ज्ञान जल। ज्ञान जल, इट इज said as Gyan and Nirdhuta Kalmesha. The body can be purified with the physical water and the sins of the soul can be purified only with the water of knowledge. This is the water of knowledge, spiritual knowledge. You can clean, you can purify your mind, your intellect and your soul. So, I told you what is the food of the soul? Who are the three enemies? Which are the three enemies of the soul? I also... Yes. And where the soul is residing? In the middle of the forehead. और अच्छा समय कौन सा है मेडिटेशन करने का? अच्छा। एंड राजयोग के 4 पिलर्स कौन से? जैसे आपका साइकिल है, डे के बाद नाइट आती है, नाइट के बाद फिर से डे आता है, वैसे ही देयर इज अ साइकिल ऑफ युगास। देयर आर 4 युगास। कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग is called as golden age, Treta Yuga is silver age, Dwapar Yuga is iron age, and Dwapar Yuga is copper age, and Kalyuga is iron age. अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग, आयरन एज, रॉन्ग। कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। ठीक है, अभी अति होती जा रही है। आपने सुना है डूम्सडे क्लॉक? अमेरिका में वॉशिंगटन के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है, और वो डूम्सडे क्लॉक के अनुसार उन्होंने वो सेटिंग करते हैं, उसके अनुसार सिर्फ वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए 89 सेकंड्स बचे हुए हैं। 89 सेकंड मतलब 89 सेकंड नहीं, मतलब कुछ साल कुछ ईयर्स बचे हुए सिर्फ। उन्होंने ये ऐसे तरीके से उसको सेट किया है पूरी तरीके से। तो देयर आर 3 फैक्टर्स उन्होंने कंसीडर किए हैं, जो सारा वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है उसके 3 फैक्टर्स कंसीडर किए। फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर वॉर। आज जो न्यूक्लियर वेपन्स सारे छोटे से छोटे कंट्रीज के पास है, तो उसकी वजह से सारा वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? द सेकंड फैक्टर उन्होंने जो कंसीडर किया है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसको सेकंड फैक्टर कंसीडर किया। उसकी वजह से अर्थक्वेक, सुनामीज और बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज होने के चांसेस है। अभी कैलिफोर्निया में क्या हुआ था पता है? अमेरिका में। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से कंप्लीटली इस प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस है। एंड थर्ड फैक्टर है सिविल वॉर्स बिटवीन द रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। बिकॉज आज जो है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है उसको भूल चुके हैं लोग, और रिलीजन के नाम से आपस में झगड़ रहे। पीस एंड हैप्पीनेस जो मेडिटेशन करने से, स्पिरिचुअल नॉलेज लेने से आती है, उसको भूल के आपस में झगड़े बढ़ते चले जा रहे। बिकॉज वी आर not considering ourselves as a soul, we are not in soul consciousness, we are going in body consciousness। और body consciousness होने से आज आपस में
जो डिस्प्यूट्स है दो देशों के बीच में, अभी पैलेस्टाइन और इसराइल का वॉर चल रहा था, ईरान, लेबनान, ये कंट्रीज भी इन्वॉल्व हुए थे। रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले 2 साल से वॉर चल रही है। तो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं है? इवन अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने बोला मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकूंगा, होने नहीं दूंगा। इसका मतलब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि सारी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस है। तो ह्यूमन के वाइब्रेशंस लोअर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, उसकी प्यूरिटी, माइंड की प्यूरिटी, इंटेलेक्ट की प्यूरिटी कम होती जाती है, सोल की प्यूरिटी कम होती है। तो मैंने बताया न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और न्यूक्लियर वॉर हो गया देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो नेचुरल कैलेमिटीज, क्लाइमेटिक चेंजेस, न्यूक्लियर वॉर, सिविल वॉर्स बिटवीन द रिलीजन्स, दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ व्हिच देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो आज की डेट में साइंस की जो पावर है, जो आपने इन्वेंशन किया साइंस से, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, किसने इन्वेंशन किया पता है? साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम का फिजिसिस्ट जो है, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन किया। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है बहन जी, है ना। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है, उसका प्रेसिडेंट किम जोंग, वो अमेरिका को धमकी देता है, इतना सा चुट्टू सा देश है, अमेरिका को धमकी देता है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन भारत को धमकी देता है मेरे पास एटम बॉम्ब है करके, हाँ या ना। तो आज ये साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। मॉडर्न साइंस ने जो इन्वेंशन किए, ये मनुष्य के डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो रही है चीजें सारी। और ये जो सोशल मीडिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इससे हमारे मन और बुद्धि का डिस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन है एक तरीके से। और हमारे अंदर की जो सोल की पावर्स है वो कम होती जा रही है। ऐसे समय गॉड इनकारनेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, जब तक वो नहीं आएगा, ये कलयुग से गोल्डन एज या सतयुग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कलयुग ये पापी है और सतयुग ये पावन है, प्योर। और कलयुग जो है वो अशांत है, दुखी है, भ्रष्टाचारी है, और जो सतयुग है वो श्रेष्ठाचारी है। देयर विल बी परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। उसके लिए, सतयुग के लिए, हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। वेरी गुड, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। तो सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, बट इट इज ओनली वन एंड वन कंसेप्ट ऑफ द आइडियल नेशन, आइडियल वर्ल्ड। वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। वर्ल्ड इज वन फैमिली तभी होगा जब एक भाषा, एक धर्म, एक मत, एक डायरेक्शन, एक राजा, एक राज्य, जब यह स्थापन होगा तब वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। There is no difference between boy and girl also. There is a equality as we are all the souls. There is no difference between the religion, no difference between the caste. There is no discrimination on the basis of the caste, religion and the gender. So जो universal brotherhood की जो concept है वो तभी आ सकती है जब ईश्वर स्वयं आके, भगवान स्वयं आके spiritual knowledge सारी दुनिया में दे दे और इस सृष्टि का परिवर्तन करे। अभी जो समय चल रहा है ये युग का ट्रांसफॉर्मेशन, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और आई एम गिविंग यू डिवाइन मैसेज दैट गॉड हैज इनकारनेटेड ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड ही इज गिविंग द स्पिरिचुअल नॉलेज। आई एम शेयरिंग यू द स्पिरिचुअल थॉट्स ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आप अगर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे, हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल से आप उसको रेगुलर स्टडी कीजिए, उससे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। अभी जो समय चल रहा है इट इज वेरी डेलिकेट टाइम फॉर एंटायर वर्ल्ड। इकोनॉमिकली बहुत सारी कंट्रीज फेल हो रहे हैं,
सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। एंड और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर होने से होगा क्या पता है आपको? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एक्सप्लोजन से, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? अरे साइंस के स्टूडेंट से, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और ग्लेशियर्स अभी भी मेल्ट हो रहे, ज्यादा मेल्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? ओशंस का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ओशंस का वाटर लेवल बढ़ने से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी आइलैंड्स है, ये आइलैंड जो है ये सबमर्ज हो जाएंगे बड़े बड़े ओशंस में, बड़े बड़े समुद्र में, और उससे मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको कहते हैं महाप्रलय, कयामत का समय। एज पर मुस्लिम कैलेंडर दिस इज द कयामत का समय। एज पर क्रिश्चियंस के अनुसार, उनके स्कॉलर्स के अनुसार ये जजमेंट डे बहुत नजदीक आ रहा है। और एज पर हिंदूज ये ऐसा समय है कि जब शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया में महाप्रलय आता है। और आपको पता है जब ये डिस्ट्रक्शन होगा तो फिर से न्यू वर्ल्ड स्टार्ट होगा, एंड दैट न्यू वर्ल्ड विल बी हेडेड बाय वन कपल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कपल? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, एडम एंड ईव, आदम और हव्वा मुस्लिम लोग बोलते हैं, और हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी शंकर पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, इज वन एंड वन पर्सनैलिटी ओनली। नाम अलग देने से कुछ नहीं होता है, सब रिलीजन्स में सिमिलरिटीज है। अगर अच्छे से स्टडीज किया तो सारी नॉलेज एक ही जगह टैली होती है। एंड द न्यू वर्ल्ड विल बी स्टार्टेड बाय आदम एंड हव्वा, एडम एंड ईव। जैनिज्म, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, तो दे आर द फर्स्ट मैन एंड द फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। एंटायर पॉपुलेशन जो 800 करोड़ से 8 बिलियन पॉपुलेशन है, वो सभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। देयर आर सम पीपल, दैट इज 9 लाख सोल्स, दोज विल बी सर्वाइव्ड, एंड फ्रॉम दैट 9 लाख सोल्स दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके द्वारा नई दुनिया स्टार्ट हो जाएगी, न्यू वर्ल्ड विल बी बिगन। तो वो 9 लाख कौन होंगे? जो अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करने का स्टडीज करेंगे, जो अपने आप को चेंजेस करने का स्टडीज करेंगे, डिवाइन क्वालिटीज लाएंगे, दो सोल्स विल बी सर्वाइव्ड। इसलिए कुरान में बोला है खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में रहते हैं। सुना है क्या? अरे खुदा के बंदे कयामत के समय बहुत मौज में रहते हैं, ऐसे बोला है कुरान में। तो ये बात अभी के समय लागू होती है। जो ईश्वर को सच्चे दिल से याद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कंप्लीटली सरेंडर्ड होते हैं, समर्पण होते हैं, उनके द्वारा ही वो डिवाइन क्वालिटीज होंगी और उनके द्वारा नई दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। सो देयर आर मेनी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस आर गोइंग ऑन, बट स्टिल देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड। God himself comes, he establishes peace in the world. There are prophecies of the many predictors. Nostradamus is the famous predictor. Nostradamus, have you heard the name of the Nostradamus? Yes. Nostradamus, Kiro, Kit, Anderson, Jules Verne. In Indian, Gopinath Shastri, Kalki Puran, Bhavishya Malika. There is a common prophecy that 21st सेंचुरी में एक महापुरुष का अवतार उत्तर भारत की धरती पर हो चुका है। वो योगियों का योगी है और वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा इस दुनिया में कि अनेक धर्मों का, जातियों का विनाश होके एक धर्म, एक जाति, एक भाषा स्थापन करेगा। भारत विश्वगुरु बनेगा और पापी कलयुग से बदल के पावन सतयुग आएगा, राम राज्य आएगा, जन्नत आएगी, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं, पैराडाइज बोलते हैं, हेवन बोलते हैं।
इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।